Yes. Hello friends, welcome to Rahul Deshik Times. Today my lecture would be covering directive principles of state policy. Now this lecture is an extension to my yesterday's video wherein बहुत विस्तार में मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स का पूरा चैप्टर लिया था and it was a very exhaustive session and I assure you today's session is rather going to be more exhaustive. Now directive principles of state policy. Friends, part 4 of the Indian Constitution covering from articles 36 to 51 deal with directive principles of state policy. Now when I say directive principles of state policy, borrowed from the Constitution of Ireland, and in earlier sense, if we try to trace out, we would find the reference of directive principles of state policy not exactly in the same shape as we see right now, but in the Government of India Act 1935, there was a clause, instrument of institutions. So this was more or less a clause dealing with the present directive principles of state policy as we have of now. Now, directive principles of state policy, this bears the notion of the concept of welfare state. Friends, this concept of welfare state एक कल्याणवादी समाज का अवधारणा, एक परिकल्पना. This welfare state is outcome is manifestation of modern constitutional developments worldwide, and this gained momentum in 20th century, and dealing with the present times, this has become one of the most effective tools worldwide in the global arena as to deal with the social and economic conditions of a country. Now coming in the Indian perspective, we need to see directive principles of state policy even in the light of fundamental rights, because fundamental rights are negative injunctions. Fundamental rights are negative injunctions, meaning rather the state is at loggerheads in order to ensure free liberty, free thinking. Negative injunctions. At the same time, we would say directive principles are non-justiciable. Non-justiciable means you cannot strive for the implementation of directive principles at the level of the courts, at the level of judicial setups in India. Rather, fundamental rights would be enforceable by the court of law, which directive principles of state policy are not. Now, fundamental rights are ensuring you पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. आपके राजनीतिक अधिकार जागृत होते हैं मौलिक अधिकार से. सुनने में ही समझ में आ रहा, अधिकार की बात आती है तो राजनीतिक प्रजातांत्रिक मूल्य की दिशा में चिंतन होना आरंभ हो जाता है. बट सिंस डीपीएसपी, दीज आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस which the state needs to follow, and then I would say directive principles with the concept of welfare state. Welfare state is actually a concept that is, I can say, it is in true sense foundation of democracy. प्रजातंत्र का पूरी तरह से आधारभूत स्तर पर लागू होना would be the notion, would be the concept of directive principles of state policy, meaning fundamental in the governance of country, fundamental in the governance of the country, and furthermore with the concept, with the notion of directive principles of the state policy, this imposes moral obligations on the state. Moral obligations on the state. Now, गौर कीजिएगा, मैं बार बार स्टेट की तरफ इशारा कर रहा हूं, एंड अभी मैंने आपको बताया कि we need to see directive principles in the light of fundamental rights. ऐसा ही स्टेट, आपको याद होगा, when yesterday's lecture we had taken fundamental rights, जिसमें from 12 to 35 we had fundamental rights. Article 12 of the fundamental rights, even this deals with the definition of state. और अभी जब मैं डिटेल में आऊंगा विस्तार में, तो आप देखेंगे 36 to 51 में
पार्ट 4 में सबसे पहला जो आर्टिकल 36 है, इवन दिस डील्स विद डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, जिसके अंतर्गत लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आएंगे। सरकार के तमाम विधिक और कार्यकारी जो अंग हैं, इंक्लूडिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, तो मीनिंग फंडामेंटल राइट में भी हम स्टेट को देख रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी स्टेट डिफाइन किया जा रहा है। एंड फर्दर मोर आप देखेंगे जब हम डिटेल में जाते हैं तो मैंने आपको बताया कि चूंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमें किसी भी कीमत पर एक सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस एंश्योर करना है। नाउ देयर इज अ लॉन्ग सेट ऑफ आर्टिकल्स कवरिंग फ्रॉम 36 to 50, है ना। एंड इसमें आप देखेंगे प्रत्येक स्तर पर सरकार के जो ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं टुवर्ड्स द सिटीजंस ऑफ इंडिया, एंड सरकार किसी भी नीति निर्माण में, इन एनी इवेंट ऑफ पॉलिसी मेकिंग, एक टॉर्च बेरर का काम करेंगे हमारे ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। एंड अब वन थिंग इज ओवरऑल purview of the constitution and one thing is dealing with the questions of UPSC, UPPCS, PCSJ। तो मैंने आपके अच्छे स्तर के समझ के लिए we have classified, एक क्लासिफिकेशन मैंने तैयार किया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, जिसके अंतर्गत we have 3 categories of directive principles, जिसमें सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स आएंगे। सबसे पहले समाज में एक सोशल एंगल से ब्रिंगिंग एवरीबडी इन द मेन स्ट्रीम ऑफ ग्रोथ, एक जो समाज की अवधारणा है, बिकॉज वेलफेयर स्टेट, कल्याणवादी जो हमारा राज्य है, दिस कैन इन नो वे बी कंसीव्ड विद द नोशन ऑफ पुलिस स्टेट। दे कैन बी अ स्टेट जो पुलिस स्टेट है अपने आप में, लेकिन कल्याणवादी राज्य है in the context of welfare state, then we'll have to see aspects of education, aspect of health, aspects of literacy, aspects of nutrition। आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो today is an age where you have indexing, हर कैटेगरी में आप देखेंगे सूचकांक हैं, तो डेफिनेटली उस जगह ये और मानदेय हो जाता है कि कल्याणवादी जो राज्य की अवधारणा है वो किस किस स्तर पर एंश्योर की जा सकती है। आजकल प्रेजेंटली आपका एम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट से ही ओरिएंटेड है। अभी हार्डली डेज पास पूरा का पूरा कोरोना जो था ये देखिए हेल्थ से ही रिलेटेड है। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं, लिटरेसी, हेल्थ, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, ये तमाम बातें जो आएंगी, इसीलिए मैंने आपको बताया कि दिस इज इंपोजिंग मॉरल ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट। मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट आर जस्टिसिएबल, बट दैट इज इंश्योरिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। मैं आपको अधिकार अगर दे रहा हूं, मौलिक अधिकार, तो अर्थ में यह हो रहा है कि अब मैं उस जगह पे रिस्ट्रेन हो रहा हूं, कंस्ट्रेन हो रहा हूं, रिस्ट्रिक्शंस हैं। बट डीपीएसपी के केस में आप देखेंगे दिस इज नॉन जस्टिशिएबल, बट इवन देन इट इज फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कितनी शानदार, कितनी खूबसूरत बात है कि इन स्पाइट नॉन जस्टिशिएबल है, बट देन दैट इज फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, एंड अपॉन द गवर्नमेंट्स इट इज इंपोजिंग मॉरल ऑब्लिगेशन। एक नैतिकता के तहत हमें देश के नागरिकों को देखना होगा, क्योंकि फिर यही वो पहलू होगा जो किसी राजतंत्र से किसी प्रजातंत्र को पृथक करेगा। नाउ कमिंग बैक अगेन, वी हैव सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, वी हैव गांधीयन सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। गांधी जी का समाज को देखने का जो नजरिया था, ट्रस्टीशिप काउंसिल, प्रत्येक व्यक्ति एक पार्टिसिपेशन हो, ग्रामीण परिवेश कैसा हो, ये तमाम बातें अभी अमेंडमेंट्स के टर्म्स में आपको हमारे राज्य के नीति निर्देश तत्व में विस्तार पूर्वक दिखाई देंगे। एंड इन थर्ड कॉन्टेक्स्ट, एक तरफ अगर मॉरल ऑब्लिगेशन है तो इंडिया किसी भी लिहाज से मॉडर्न आइडियाज, खासतौर से वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स
इनसे भी इंडिया डजंट वांट टू बी बेरेफ्ट ऑफ, उस कॉन्टेक्स्ट में भी वी हैव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। लेकिन मैं इसके ऊपर आऊं उसके पहले बहुत विस्तार से इन डिटेल लेंथ, मैंने पहले ही आपसे कहा कल का फंडामेंटल राइट वाज एग्जॉस्टिबल, आज उससे ज्यादा एग्जॉस्टिबल होना है। नाउ when we go into the details, into the intricacies of directive principles of the state policy, तो आर्टिकल 36 to 51, अब इसमें सबसे पहले आर्टिकल 36 जो है ये स्टेट को डिफाइन करता है, मीनिंग दैट द एंटायर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, सेंटर के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, लोकल अथॉरिटीज के लेवल पे, क्योंकि स्टेट को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। Last of all, we'll have to fix the responsibilities. Now, जैसे स्टेट की डेफिनेशन फिक्स होगी, आर्टिकल 37 इसके एप्लीकेशन की बात करेगा कि which would be those areas and what would be the modus operandi for the implementation of these directive principles of the state policy. Now, आर्टिकल 38 मैंने कल भी फ्रेंड्स आपसे कहा था, आज भी मैं कहूंगा, कॉपी पेंसिल जरूर लेके बैठा कीजिए राहुल ऋषिक टाइम्स के अपलोडेड यूट्यूब में वीडियोस देखने के पहले। नाउ आर्टिकल 38, स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर, क्योंकि वेलफेयर स्टेट कैन इन नो केस बी अचीव्ड अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ सोशल ऑर्डर। आर्टिकल 39, सर्टेन प्रिंसिपल्स, what are going to be the principles, what are going to be the modalities to fix, which are going to be the core areas, ये तमाम बातें होंगी आर्टिकल 39 में। नाउ विद द एजेंसी ऑफ अमेंडमेंट्स, आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 39A के तहत यू हैव इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। दिस हार्ड वर्क पर्टेन्स टू जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी is from day one reformist judiciary, and we do not resort to punitive measures. rather क्राइम है, मेंस रिया है, तो उसके पीछे के तमाम सामाजिक पहलू पे चिंतन होना चाहिए, एंड इन एनी केस इनोसेंस नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड। इसके तहत आप देखेंगे आपका इक्वल जस्टिस, बिकॉज वो समाज की अवधारणा परिकल्पना व्यर्थ होगी अगर समाज में सोशल जस्टिस, सोशल इक्विटी के प्रिंसिपल्स एनश्राइंड ना हो। नाउ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 40 पे जहां मानते हैं, आप देखेंगे एक कितना सोशल एंड कल्चरल मेन्यू हमें दिखाई दे रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। एक समाज का मिश्रित स्वरूप हमें ऐसा लग रहा है कि बड़े एक एक मोती को पिरो के जैसे लगाया गया है। डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। नाउ आप देखेंगे, नाउ यू विल सी आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। मतलब आप ये देखिए कि ग्राम बेसिक इकाई है समाज की, एंश्योरिंग जस्टिस, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन आई वुड से, जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आता है। आर्टिकल 41, राइट टू वर्क, एक वर्क, एक कार्यशैली, डिग्निटी ऑफ लेबर, है ना। और आज का मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो नरेगा, मनरेगा, एंश्योरिंग डिग्निटी ऑफ वर्क, एम्प्लॉयमेंट, ये तमाम बातें इसी से आएंगी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, आप इसको आइसोलेशन में मत पढ़िए। आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, आज की तारीख से यू विल हैव टू मेक अ कनेक्शन टू दैट कि अच्छा यहां पे ये हो रहा है, अमेंडमेंट में ये हुआ था, इसके नतीजे में देखिए ये चीज हो रही, इसके नतीजे में राइट टू एजुकेशन आया, इसके नतीजे में देखिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा था, दैट वे। नाउ आर्टिकल 42, अब वर्क तो हो रहा है लेकिन वर्क प्लेस का भी एक कल्चर है, तो जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस इज बीइंग इंश्योर्ड बाय आर्टिकल 42। एंड कई बार क्वेश्चन एग्जाम से पूछा गया है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट किसके तहत आएगा, बट ऑब्वियस अब जब आप इतने डिटेल में पढ़ेंगे तो आप बताएंगे आर्टिकल 42 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मैटरनिटी रिलीफ का भी प्रोविजन देता है। आर्टिकल 43, लिविंग वेज, भाई वेजेस का बड़ा मसला है हिंदुस्तान में। एवरी नाउ एंड देन इन स्पाइट सो मेनी वे पे कमीशंस वी हैव, बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग यू a deep down thought, article 43, living wage. 43A,
वर्कर्स हैं, you are working, the government is paying for you, but then simply working is not sufficient. After rendering 30, 32, 35 years of services, even आपका भी मन करता है कि कितना अच्छा हो कि प्रबंध तंत्र में हमारी भी कुछ सहभागिता एंश्योर हो। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी आज वर्ल्ड वाइड में फेमस है, बट जरा सोच के देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 43A जो है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, कितनी खूबसूरत बात है ये। किसी भी श्रेणी में एक कर्मचारी हो सकता हो, लेकिन एक सेंट्रल गवर्नमेंट को जब वो देखता है, स्टेट गवर्नमेंट को देखता है, तो एक जो अपनेपन का एहसास होता है कि हमारी सरकार है, कल्याणवादी राज्य है, सरकार हमारे लिए चिंतित रहती है, हमारे परिवार के लिए। नाउ आर्टिकल 44 देखिए, सोशल जस्टिस इज नॉट सिंपली एन एक्रोनिम जो बस कह दिया। आर्टिकल 44 कितना इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इन तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स के ऊपर इन टाइम्स टू कम वी विल बी डेफिनेटली गिविंग लेक्चर्स इन डिटेल लेंथ। आर्टिकल 45 प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एंड वी अंडरस्टैंड फंडामेंटल राइट में भी अब इसका इंक्लूजन हो चुका है ना। क्योंकि मैंने इस जगह पे देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मैंने आपसे कहा था कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, डीपीएसपीज आर नॉट। अब आप अपने मन में यह सोच सकते हैं कि सर डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल है, एजुकेशन जैसी इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, लेकिन आप 70 साल का अगर गहन अध्ययन करेंगे, क्लोजर स्क्रूटनी आप देखेंगे, देन आई वुड से वी हैव टू अ वास्ट एक्सटेंट रीजनल डिस्पैरिटीज, सेक्टोरल डिस्पैरिटीज। एक छोटा राज्य हो सकता है, एक बड़ा राज्य हो सकता है। छोटा राज्य अपने स्तर पर स्ट्राइव कर रहा है एक्सेलेंस की तरफ, बड़े राज्य की अपने प्रेरोगेटिव्स होते हैं। तो एट टाइम्स ऐसा हो सकता है कि एक राज्य के इतने संसाधन अभी नहीं इतने परिपक्व हो पाए हैं कि वो निःशुल्क शिक्षा या तमाम स्वास्थ्य संबंधित, लेकिन इन टाइम्स टू कम वी हैव सीन कि ओवर 70 years perhaps all our states, all our union territories, they are excelling in all spheres of growth. Now अब आप देखेंगे आर्टिकल 46 एजुकेशनल, देखिए कंपल्सरी एजुकेशन हो रही है, कितना ऑर्डर कितना अच्छा है। 46 में एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड वीकर सेक्शंस, मीनिंग whosoever is depressed, there may be so many tribal aspects, so many remote areas, और आज ग्रोथ हमारी, बिकॉज आज का जो अर्थशास्त्र का पैमाना है, वी नीड टू हैव सस्टेन्ड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, एक समग्र विकास की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमें चलाने होंगे। नाउ 47 शिक्षा हो गई, रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पब्लिक हेल्थ। अभी देखिए, आप उसको व्यंग भी समझ सकते हैं, लेकिन पूरे विश्व में कोरोना पेंडेमिक को लेकर क्या स्थिति बनी थी, बट वी इंडियंस बहुत अच्छे से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के चलते वी कुड से वी एक्सेल्ड परहैप्स। जो कुछ भी वो एक ट्रेमर फेस चल रहा था, और द मोमेंट यू गॉट द न्यूज की वैक्सीन आ गए हैं, एंड डेफिनेटली वी नीड टू बी प्राउड कि भारत ने, हिंदुस्तान ने लगभग पूरे विश्व में जिस तरह से इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम चलाया है, तो ये डेफिनेटली हमारे ये जो आदर्श थे, इस आदर्श के बैकड्रॉप में ही तो हम आगे बढ़ रहे डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, एंड वी आर सो वेरी वेल एग्जामिनिंग कि हमारी जो निवर्तमान सरकारें हैं, ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन पूरी तरीके से बखूबी इसका अनुपालन हो रहा है। नाउ 48 एग्रीकल्चर, वी कैन नेवर अंडर एस्टिमेट इंडियन इकोनॉमी इज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। आप देखेंगे IAS मेंस में, PCSJ मेंस में, हर जगह पे इंडियन इकोनॉमी इज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एंड डेफिनेटली एग्रीकल्चर का जो हमारा डिपेंडेंस रेशियो है वो कम होता जा रहा है और इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं। बट अगर आप पिछले 70 साल का गहन अध्ययन करेंगे तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कृषि प्रधान देश था और आज भी है, एंड वी आर प्राउड दैट इंडियन इकोनॉमी इज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। नाउ एग्रीकल्चर, अब आप देखिए कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन इज एन एस्पेक्ट ऑफ
तो अब लाजमी बात है कि बच्चा तो कंफ्यूज होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आप सीधे सीधे अगर आपने एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है और आपको बखूबी याद है कि आर्टिकल 48 और टीपीएसपी डील्स विद एग्रीकल्चर, तो ग्रीन रेवोल्यूशन हो, हाई यील्डिंग क्रॉप्स की बात हो, ये सब कुछ आप कहां से उठाएंगे? डेफिनेटली हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से उठाएंगे। नाउ एंड डेफिनेटली इट्स नॉट ओनली एग्रीकल्चर इट्स अलाइड सेक्टर्स, क्योंकि आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि लाइव स्टॉक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, पशुधन। नाउ 48A, इसमें बात की जा रही है एनवायरनमेंट की, क्योंकि आज आप यू भी देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आज अगर आ रहे हैं तो एनवायरनमेंट इकोलॉजी से आ रहे हैं। तो एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को किसी भी कीमत पे हमें बचाना है। आज अंतरराष्ट्रीय मान स्तर पर आप देखेंगे तमाम क्योटो प्रोटोकॉल, जोहानिसबर्ग अर्थ समिट, COP15, COP16, COP21, this all is hovering around environment protection. Now हमारे टीपीएसपी में या आप देखिए कितने बखूबी 48A के अंतर्गत एनवायरमेंट की बात की गई है। लगातार कहा जाता है कि फॉरेस्ट कवरेज जो स्टैंडर्ड से 33% रिड्यूस हो रहा है। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। अब जाके यूएनओ टेंजिबल, एंडेंजर्ड, एक्सटेंट, तमाम क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं, लेकिन वी हैव दिस कंटेंट इन टीपीएसपी। उसके बाद 49, उसे यूनेस्को में आप देखेंगे टेंजिबल लिस्ट आ रही है, इनटेंजिबल लिस्ट आ रही है। तो मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस विच वी नीड टू प्रिजर्व, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, ये हमारी विरासत है। दिस इज अवर रिच हेरिटेज विच वी नीड टू प्रिजर्व एंड कंजर्व इन एनी केस, बिकॉज दिस कैन नीड टू बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद मॉडर्न इंडस्ट्रीज। टूरिज्म को भी हाल में इंडस्ट्री का दर्जा मिला है। देखिए नाउ आर्टिकल 15, देखिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी कितने बार आक्षेप लगता रहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका, we are not going into the debate and controversy as to which is superior, but then at least they need to know their own areas, because judicial setup के बगैर कुछ नहीं होना है, and executive both need to be given liberty। और बखूबी आर्टिकल 50 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करता है। एंड फाइनली एंड लास्ट ऑफ ऑल वी हैव आर्टिकल 51, जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जब तक ग्लोबल लेवल पे शांति नहीं होगी, सुरक्षा की भावना नहीं होगी, इंटरनली वी कैन नॉट ग्रो। एंड बट ऑब्वियस आज का जो दौर है डिप्लोमेटिक दौर है, फ्री ट्रेड जोन्स का एरिया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आर द मेजर की एरियाज। एंड आप देखेंगे इन तमाम फ्रॉम 36 टू आर्टिकल 50, ये जो एक लंबी लिस्ट है, इसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, अपने लेवल पे ही चिंतन कीजिए एंड यू विल अंडरस्टैंड। किसी जगह आपको दिखाई देगा कि अच्छा इसमें से क्या खादी को भी लिया जा सकता है, तो आपको लगा हाँ खादी पे क्वेश्चन बन जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन को लिया जा सकता है, हाँ ग्रीन रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन बन जाएगा। अरे यहां से तो पंचायती राज इमैनेट हो रहा है, 73rd अमेंडमेंट आ रहा है, मीनिंग टू से थिंग्स आर रिलेटेड। आप देखेंगे अच्छा आर्कियोलॉजिकल सर्वे, हाँ मॉन्यूमेंट्स को लेकर ये बात हुई थी, अभी ये प्लेसेस को लेकर बात हुई है। अभी देखिए अयोध्या सर्किट बताया गया है, अभी देखिए फला राज्य की कला जो थी वो ऑब्जेक्ट में आ रही है। तो इस तरह से यू कैन फेच इनफाइनाइट क्वेश्चंस आई वुड से। और मैं हमेशा कहता हूं यूपीएससी, यूपीपीसीएस, पीसीएसजे, these examining bodies year throughout they tend to frame questions. You also frame questions, you also create questions. कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, बहुत मेहनत कीजिए। नाउ हैविंग अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आई एम कमिंग बैक अगेन टू माय क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब डेफिनेटली यहां तो 36 से लेकर 51 तक वी हैव क्लब्ड परहैप्स ऑल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लेकिन स्पेसिफिकली फिर हमें यहां से निकालने होंगे कि अच्छा ये सोशलिस्ट आइडियल्स हैं समाजवाद को लेके,
ये गांधीयन प्रिंसिपल्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये खुलापन दे रहे हैं, इंटरनेशनल ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी की बातें कर रहे हैं। नाउ बहुत इत्मीनान से ब्लैक बोर्ड को देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, एकदम नजरें गड़ा दीजिए मेरे ब्लैक बोर्ड की तरफ। अब देखिए सोशलिस्ट आइडियल्स को जब हम देखते हैं तो कॉपी पेन से लीजिए, नोट डाउन कीजिए। आर्टिकल 38, 39, अब 38 आपको बखूबी पता है कि 38 सब में लिखा है स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर, सोशलिस्ट की बात हो रही है, कितना इजली आप समझ रहे हैं। आर्टिकल 39 सर्टेन प्रिंसिपल्स की बात की गई है। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस की बात की गई है। तो आप सोचें कि लेकिन एग्जाम में अगर ऑप्शंस आ रहे हैं तो सीइंग द टाइम लिमिटेशन, रियल लाइफ कंडीशंस ऑफ एग्जाम, फिर आप कंफ्यूज होंगे। 39A, 41, 42, 43, 43A, 47 मैंने कल भी कहा था फंडामेंटल राइट्स में याद कर लीजिए, समझिए, याद कीजिए, समझिए, याद कीजिए। नाउ गांधीयन आर्टिकल 40, जब आर्टिकल 40 इधर देखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, महात्मा गांधी वॉज परहैप्स द मोस्ट वोटरी टुवर्ड्स रूरल डेवलपमेंट। आज हमारे नाबार्ड, स्मॉल सेक्टर, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये तमाम बातें ग्रामीण परिवेश की तरफ इशारा करती हैं। 40, 43, 46, 47, 48 आप देखेंगे आर्टिकल 48 की जब बात आ रही है एग्रीकल्चर, तो जब आप समझ लेते हैं योर कॉन्सेप्ट्स नीड टू इंप्रोवाइज डे बाय डे, बिकॉज बुक्स तो की तो कमी नहीं है। देखिए मार्केट में आज आप एक किताब खरीदिए, कल दूसरा कोई बता देगा। नोट्स भी आप एक एग्जाम पूर्व जो खत्म हुआ आपको लगा कि अब नोट्स हमारे व्यर्थ चले गए, लेकिन लगातार आपको ये दिस इज सक्सेस मंत्र, मैंने आपको इतना रिच फॉर्मूला में दे रहा हूं, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश कर रहा हूं कि बस इसके बाद आप मास्टर हैं। एंड मैंने आपसे पहले ही कहा कि दिस इज डेफिनेटली एक्सटेंशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ राहुल दीक्षित। आई माई सेल्फ राहुल दीक्षित टू द कॉज ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स 44, 45 लिखते जाइए, 48A, 49, 50, 51 और वेस्टर्न आप सीधे सीधे 51 आपको पता है, क्योंकि एग्जाम में सोचने का टाइम ज्यादा नहीं है, बस आपने सोचा आंसर करा, अगले क्वेश्चन पे है दैट वे। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको एक पूरा डिटेल्ड एस्पेक्ट समझाने की कोशिश की है, आई अंडरस्टैंड काफी एग्जॉस्टिव है, लेकिन जो अच्छी बात है ना, एंड कमिंग टू इन टाइम्स टू कम, लगातार आप देखेंगे मेरे, आई सपोज दिस इज माय 15th वीडियो एंड परहैप्स डेली वीडियोस आ रहे हैं आपके पास। ये जो कुछ भी मैंने आपका ये लेक्चर लिया है, घर जाइए आज की तारीख में कोशिश कीजिए कि यू आर डन विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दैट वे मैं फिर से एक बार कवर करना चाहूंगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी borrowed from the Constitution of Ireland, and we have traces of directive principle of state policy even in the Government of India Act 1935। क्योंकि स्मरण हो, मैंने कल के फंडामेंटल राइट के चैप्टर में आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड हमारा प्रेजेंट आज का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आज की कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्लस फंडामेंटल राइट्स, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इसका एक जो वेलफेयर स्टेट का नोशन रहा होगा, ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस का एक जो एस्पेक्ट है, यहां पे आपको इसके ट्रेसेस दिखाई दे सकते हैं। एंड कल्याणवादी राज्य की अवधारणा, एक डीप डाउन कंटेम्पलेशन, इसमें आपको चिंतन करना होगा तमाम सोसाइटी के, सोशियोलॉजी के, सोशल वर्क के पहलू जो हैं, समाज की क्या आवश्यकताएं हैं। बिकॉज मैंने आपको कहा कि प्रजातंत्र की बहाली तो मौलिक अधिकार से हो रही है, लेकिन वो राजनीतिक स्तर पर हो रही है, परंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आप देखेंगे कि सामाजिक और आर्थिक पहलू के बीच सामंजस्य जब हम बनाते हैं तो दिस एक्ट्स एज अ मॉरल ऑब्लिगेशन अपॉन द गवर्नमेंट्स, सरकारों के लिए एक तरीके से फंडामेंटल टू डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी आपने रिसोर्ट की है, मोनार्की रिसोर्ट नहीं की है। देखिए नाउ एक मौलिक अंतर जो आना चाहिए, बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स
एंड डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लेवल पे प्री के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो बुनियादी बात तो यह है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, डीपीएसपीज आर नॉट, मीनिंग in the case of fundamental rights they are enforceable in court of law, which directive principles are not. Furthermore, in case of fundamental rights these are negative injunctions, but in case of directive principles these are rather positive obligations. और ये किसके ऊपर? स्टेट के ऊपर। स्टेट को बहुत अच्छे से हमें समझना होगा कि as to what is state. Now on the one hand when we see हमारा कल का क्लास जिसमें 12 to 35 मैंने किया था, तो the same state is defined in the fundamental right in the article 12. The same state is defined in chapter 4 DPSPs, है ना। और इसमें आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 37 जो है ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है पूरी तरह से। तो आप इसको बखूबी देखेंगे कि आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट का और हमारे पार्ट 4 डीपीएसपी का जो आर्टिकल 36 है ये डेफिनेशन की बात करता है, और स्टेट का एप्लीकेशन कैसे होगा ये 37 से जाएगा। हार्ड कोर डीपीएसपी 38 से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि लगातार इस तरीके के हमारे जो प्रयास हैं इससे डेफिनेटली आप लोग बहुत दूरगामी स्तर पर लाभान्वित होंगे। ट्राई टू बिल्ड इन कॉन्फिडेंस, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके चलिए, बिकॉज आप ऐसे मान के चलिए कि आप यू आर द बेस्ट। आप जो सोच रहे हैं, आपने जो भी एक सपना देखा है अपने जीवन को लेके, बस वक्त आ चुका है कि उसके ऊपर आप गहनता से एक एनालिसिस के साथ आप काम करना शुरू कीजिए, एक स्ट्रेटेजी बनाइए। मैं बार बार कहूंगा कि आप पीसीएसजे के एंगल से देखिए तो मेरे वीडियोस आप देखेंगे मैंने बहुत अच्छे से 3 स्टेजेस में आपके लॉ के पेपर्स कवर किए हैं। जनरल स्टडीज मेरे लगातार वीडियोस अब आते रहेंगे, क्योंकि इस बीच पॉपुलैरिटी और आप सबके और मेरे मेहनत के प्रयास के चलते कई कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि सर अभी मेरे पास कल मैं देख रहा था इमरजेंसी के ऊपर आ जाएगी, मुझे लगा मैं डीपीएसपी तो कंप्लीट करूं सबसे पहले, है ना। तो इकोनॉमिक्स में, साइंस एंड टेक में लगातार वीडियोस आते रहेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप ये मान के चलिए कि हर 1-2 दिन में जरूर यूट्यूब और राहुल ऋषि टाइम्स को सर्च कीजिए, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 2 दिन बाद आपको याद आया तो तब तक तो आपके मान लीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर ओवर हो गया, है ना। तो बहुत अच्छे से ठंडे दिमाग से राहुल ऋषि टाइम्स आपके साथ कदम कदम पे है, क्योंकि देखिए मेरा सिर्फ पर्पस ये है कि आप सब अपने घर में हैं, हो सकता है घर से दूर कहीं हैं, कैसे भी आपकी स्थिति है, लेकिन ये मान के चलिए कि राहुल दीक्षित और राहुल दीक्षित टाइम्स आपके साथ हर कदम पे है। आपको किसी भी स्तर पर अगर ये लगे कि किसी टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन है एज रिगार्ड्स टू क्वेश्चंस, द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, आप बाकायदा कमेंट कीजिए, मैं जरूर वादा करता हूं आपके ऊपर मैं चिंतन करूंगा और आपको टाइम जरूर दिया जाएगा। आई विश यू ऑल द सक्सेस। बहुत आगे बढ़िए, बहुत आगे बढ़िए, बहुत तरक्की कीजिए, अपने ख्वाब को पूरा कीजिए। दिस इज द टाइम। थैंक यू सो मच।